Good morning, students. In the last video of class 12 business studies, we discussed the chapter number 8, that is controlling. Under this chapter, we discuss the concept and definition of controlling, nature and feature of controlling, that is goal oriented, pervasive, continuous, backward looking as well as the forward looking, and as well as we discussed the importance of controlling. Controlling helps to achieve an organization goal. With the help of controlling, we judging accuracy of a standard, making efficient use of resources, improving employees motivation, ensuring order and discipline, and facilitating coordination in action. In today's video, we will move to the next topic of this chapter, that is controlling. The topic is limitation of controlling. You know very well, controlling is a process in which we measure the actual performance against a specific standard, calculate deviation, and taking corrective action for the future. So the controlling process is not the last function of the management. It helps to design, construct for the future plan. Controlling process has its own significance. It provides various benefits to the organization, but some kind of situation, some kinds of barriers which affect the process of controlling. So the limitation of controlling indicates the drawbacks or barriers in the implementation the effective controlling process. Let's discuss it. The process of controlling suffers due to the following reason. The first one, difficulty in setting quantitative standard. You know very well कि जब भी हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को इस्टेब्लिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं. बट द फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ वी विल डिसाइड दी स्टैंडर्ड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म. यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कंट्रोलिंग में कि हम जो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर रहे हैं उसके लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करना, और किस तरह का स्टैंडर्ड, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड डिसाइड करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट होता है. कंट्रोल सिस्टम इज इफेक्टिव व्हेन स्टैंडर्ड आर डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, बट इन सम केसेस लाइक एम्प्लॉय मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन, etc. It is not possible to set quantitative standard. In the absence of these standard, measurement and comparison become difficult. यानी अगर हम क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड की बात करें एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, तो डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड मीन्स ये कि जैसे अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें पर डे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, 500 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो इन स्टैंडर्ड को डिसाइड करना इजी है. बट क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई होना चाहिए, जॉब सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा होना चाहिए? आखिर हम इस स्टैंडर्ड को कैसे डिसाइड करेंगे? हम कैसे मेज़र करेंगे कि हमने जैसा मोरल चाहिए एम्प्लॉयज़ का आज वैसा ही मोरल है? हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन लेवल है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब वो ज़्यादा है एंड कंपेयर्स टू द प्रीवियस सिचुएशन? तो जब हम क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड को हम ईज़िली मेज़र नहीं कर सकते, उसके स्टैंडर्ड को ईज़िली डिसाइड नहीं कर सकते. और जब हम स्टैंडर्ड ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो हम परफॉर्मेंस को मेज़र भी नहीं कर सकते और ना ही उनका कंपैरिजन कर सकते हैं विद द स्टैंडर्ड. जैसे मैंने स्टैंडर्ड रख लिया एम्प्लॉयज़ मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन, बट हम कैसे मेज़र करेंगे कि किसी पर्टिकुलर बंदे के अंदर मोरल हाई है, जॉब सेटिस्फैक्शन है? तो ये इस तरह की सिचुएशन कंट्रोलिंग में देखने को मिलती है. द सेकेंड drawbacks or limitation of controlling, that is little control on external forces.
There are certain external forces, factors like changes in government policies, technological changes, competition, which are beyond the control of the organization. Thus, controlling such factor becomes difficult. अगर हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग में हमारा स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना, स्टैंडर्ड को डिसाइड करना और करेक्टिव एक्शन निकालना ही नहीं होता, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करना होता है। लेकिन मैंने शुरू में ही बताया इन द चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट में कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब से हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिन पे हम कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेसेस सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम्स, इंटरनल फैक्टर से हुए प्रॉब्लम्स को ही जज कर सकता है, उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। बट जो एक्सटर्नल फोर्सेस से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम तभी हैंडल आउट कर सकते हैं जब एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे फेवर में होंगे। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो रहा है। सो उस लेवल में हम कंट्रोलिंग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। द थर्ड वन इज़ रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। Employees often resist control as they consider is that restriction or foundation on their freedom. That is, example given, employees might resist working under close supervision of CCTVs and cameras. Generally जब हम कंट्रोलिंग इस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि आप सही डायरेक्शन में चलें, अपने गोल को अचीव करने की दिशा में चलें। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने एनालिसिस किया कि कंपनी अभी भी अपने टारगेट से 20% पीछे चल रही है, एक एनालिसिस हुआ। नेक्स्ट, और ये कमी देखी गई, ये पाया गया कि प्रोडक्शन उतने अच्छे ढंग से नहीं हो रहा, एम्प्लॉयज़ 8 घंटे की जगह 7 घंटे ही काम कर रहे हैं, 6 घंटे ही काम कर रहे हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो बाकी एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, काम करने में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम सपोज़ आई, तो अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ये कंसिडर किया कि अब मैं जितना प्रोडक्शन प्रोसेस होगा वो एक CCTV कैमरे में होगा, और हम ये फोकस करेंगे कि कौन बंदा कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा, कौन एम्प्लॉयज़ अपना प्रोडक्शन में 100% कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, और जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो टारगेट है वो 20% लेस है, यानी हम अपने टारगेट से 20% पीछे चल रहे हैं। अगर ऐसे ही हालत रहा तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो इस तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट की ताकि उसे लॉस न बियर करना पड़े। एम्प्लॉयज़ उसका विरोध करते हैं, यानी कंट्रोलिंग प्रोसेस को वो अपना फ्रीडम के लिए बाउंडेशन मानते हैं, और ये उनका ये मन में ये भी आता है कि कुछ लोगों के कारण हम सबको क्यों सजा दें। तो यानी वो 24 घंटे और जितने देर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे उतने दिन उनके सामने कैमरा रहेगा, उन्हें कैमरे के टाइम रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी फ्रीडम, उनका इनफॉर्मल स्पेस कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। सो कंट्रोलिंग के लिए ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। द फोर्थ वन इज़ कॉस्टली अफेयर। Control is a costly affair as it involves a lot of expenditure, time and effort. A small firm cannot afford to install an expensive control system. The cost of control system should not exceed the benefit derived from it. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखिए कंट्रोल एक अलग सा प्रोसेस है, इसमें हम बहुत सारे काम करते हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, और फिर कंपेयर करते हैं कि हमने अपने टारगेट के अकॉर्डिंग कितना काम किया और नहीं किया, तो उसके लिए क्या क्या करेक्टिव एक्शंस हो सकते हैं। इसमें काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एफर्ट्स लगता है। इसके लिए भी कई मैनेजर्स होते हैं, सुपरविज़न होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, कंट्रोलिंग इंस्पेक्टर होते हैं, तो उनको भी तो सैलरी चाहिए। यानी ये सारा काम जो है कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। तो अगर हम कंट्रोलिंग प्रोसेस के एक लिमिटेशन देखें तो वो ये है कि ये एक एडिशनल कॉस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन एडिशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में इसको हम लोग बॉन्ड करते हैं। बट इसके लिए एक सजेशन भी दिया गया है कि हमें कंट्रोलिंग प्रोसेस को पे उतना ही खर्च करना चाहिए जितना हमें इससे बेनिफिट मिल रहा हो, ठीक है। और जनरली कॉस्ट कंट्रोलिंग जो है सिस्टम है ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जैसे अगर आप किसी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो,
तो आपने 5 वर्कर रखे हैं, तो 5 वर्कर की सैलरी तो उसकी कॉस्ट का पार्ट है ही। एक दो बंदे को आपने इसलिए रखा है जो एनालाइज करे कि काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उनकी भी तो सैलरी इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से पैसा देगा उनको, यानी कहीं ना कहीं उनकी भी सैलरी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज़ करेगी, और जिससे उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होगी, मतलब किसी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होगी तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, डिक्लाइन। ओके, तो इन सारे लिमिटेशंस को हमने स्टडी किया कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। दैट इज फर्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस, that is 4 factors, resistance from employees and costly affair. Now we will move to the next topic of this chapter, that is relationship between planning and control. You know very well, controlling is a backward as well as forward looking. आपने अभी भी ये फीचर्स में पढ़ा कि कंट्रोलिंग एक कॉइन की तरह है जिसका 2 साइड है, हेड एंड टेल, बैक साइड एंड फ्रंट साइड। उस तरह कंट्रोलिंग जो है वो दोनों टर्म से जुड़ा हुआ है, अपने पास्ट से भी और अपने फ्यूचर से भी, क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग भी एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। सो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में एक अटूट रिश्ता अगर हम बात करें, अगर प्लानिंग नहीं होगा तो कंट्रोलिंग नहीं होगा, और कंट्रोलिंग नहीं होगा तो प्लानिंग नहीं होगा। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट करता हूँ, फिर इस पर हम लोग डिस्कशन पे वापस लौटते हैं। देखिए, प्लानिंग जो है वो ये डिसाइड करता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू, व्हेन टू डू, यानी एक तरह का ये स्टैंडर्ड प्रेजेंट करता है। कंट्रोलिंग क्या करता है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्गेनाइजिंग हुआ कि नहीं हुआ, स्टाफिंग हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्टिंग हुआ नहीं कि नहीं, वो निकालता है। यानी प्लानिंग में हम प्लान करते हैं और कंट्रोलिंग में उस प्लान की इफ़िशियंसी को चेक करते हैं। चेक कर लिया। कंट्रोलिंग के बाद कंट्रोलिंग फिर फ्यूचर जब हम प्लान करेंगे तो कंट्रोलिंग से जो रिज़ल्ट आए होंगे, जो करेक्टिव एक्शन आए होंगे, जो डेविएशन आए होंगे, उनको ध्यान में रख कर फिर प्लान करेंगे। यानी प्लानिंग हेल्प्स टू द कंट्रोल एंड कंट्रोल हेल्प्स टू द न्यू प्लान। यानी प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए बेस होती है, जिसके हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल से आने वाले रिजल्ट से हम नए प्लान की ओर मूव होते हैं। ओके, so the planning and controlling are interrelated and interdependent. Both of them are forward looking as well as the backward looking in function. दोनों ही प्लानिंग हो चाहे कंट्रोलिंग, दोनों बैकवर्ड भी हैं और फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर inseparable twins of management. They are interrelated and interdependent function of management. Planning is the base of controlling function, as controlling involves measurement of performance against the standard to analyze deviation and take corrective action. Thus controlling is impossible without planning. यानी कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना कुछ नहीं, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, स्टैंडर्ड को डिसाइड करते हैं, एनालाइज करते हैं डेविएशन को, और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो प्लानिंग ही तो हमें सब बताता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज़ मीनिंगलेस। अब प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग हो सकता है? नो सर, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इन द absence ऑफ कंट्रोलिंग इट इज़ इम्पॉसिबल टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड कीप अ चेक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। यू नो, प्लानिंग में आपने पढ़ा था द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज़ फॉलो अप। उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लान को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो चेक करते हैं कि हमारा प्लान अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट सक्सेसफुल रहा है कि अनसक्सेसफुल रहा है। तो वो कैसे पता चला है? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। यानी कंट्रोलिंग ही हमें हेल्प करता है जो ये बताने के लिए कि जो हमने प्लान बनाया है वो प्लान का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ। यानी विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग विल फेल टू अचीव ऑब्जेक्टिव। यानी विदाउट कंट्रोलिंग हम ये नहीं पता कर सकते कि प्लानिंग अपने गोल को अचीव किया कि नहीं किया। प्लानिंग इज़ अ थिंकफुल प्रोसेस वाइल कंट्रोलिंग इज़ एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। प्लानिंग में हम सोचते हैं और कंट्रोलिंग में उसी सोच को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। वाइल प्लानिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट, कंट्रोलिंग इंश्योर दैट सच डिसीजन आर कन्वर्टेड टू डिजायर्ड एक्शन। यानी उस थिंकिंग को, उस इमेजिनेशन को, उस जजमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं। द प्लानिंग इज़ प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज़ इवेल्युएटिव। यस, प्लानिंग जो है एक प्रिस्क्रिप्टिव है। जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, कोई
आपकी कोई बीमारी थी, आपने डॉक्टर को दिखाने ले गए, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया कि 1 महीने 1 हफ्ते आप दवाई खाइए, ये ट्रीटमेंट करिए। आपने उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया एंड देयर आफ्टर एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, यानी 1 महीने और 1 हफ्ते बाद वो फिर से आपका चेकअप कराएंगे और पता करेंगे कि आपका जो टेस्ट है उसमें आप सक्सेसफुल हैं कि नहीं। टेस्ट मीन्स व्हाट, ये आपका ब्लड टेस्ट होगा या आपका एक्सरे होगा, वॉटेवर, जिससे वो पता करेंगे कि आपको जो बीमारी थी वो दूर हो गई कि नहीं दूर। यानी शुरू में उन्होंने प्लानिंग किया, आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको कैप्सूल दिया, आपको दवाइयाँ दी, आपको इंजेक्शन दिया, और उसके बाद जब आपने प्रॉपर कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको कंट्रोल भी इस्टेब्लिश किया कि उस बीमारी से आप दूर हुए कि नहीं। जो होता है कंट्रोलिंग का पार्ट, दैट इज एग्जीक्यूटिव पार्ट, इवेल्युएटिव पार्ट। तो प्लानिंग एक प्रिस्क्रिप्टिव पार्ट है और कंट्रोलिंग जो है एक इवेल्युएटिव पार्ट है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। So the next point is planning and controlling are forward looking as well as backward looking function. How? Let's discuss it. The first one is as a planning and controlling as a backward looking and forward looking. The first one is planning is a forward looking function. Planning involves setting objective and deciding the future course of action and to achieve them. Thus it is regarded as a forward looking function. यानी प्लानिंग को हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग फ्यूचर में होने वाले एक्शन को पहले से डिसाइड करते हैं और ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं। द सेकेंड पार्ट कंट्रोलिंग इज़ अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग को हम लोग बैकवर्ड लुकिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ पोस्टमार्टम ऑफ द पास्ट एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज एंड फाइंडिंग आउट डेविएशन फ्रॉम द टारगेट स्टैंडर्ड। यानी कंट्रोलिंग में हम लोग पास्ट एक्टिविटी का पोस्टमार्टम करते हैं, पता करते हैं कि हम अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ चूक गए हैं, हम अपने स्टैंडर्ड को कहाँ कहाँ अचीव नहीं कर पाए। Whereas the third point, planning is a backward looking function because planning is guided by past experience and corrective action taken in the controlling process. Thus is regarded as a backward looking function. Planning जो है backward looking क्यों है? क्योंकि जब भी हम प्लान करते हैं तो पास्ट किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में जो कंट्रोल से रिजल्ट आया है उसके हेल्प से हम फिर से रीप्लान करते हैं। जैसे आप यहीं देख लो, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है। आपने प्लान किया, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग किया। जब आप फिर से प्लान करोगे तो जो आपने कंट्रोलिंग किया, जो आपको रिजल्ट मिला है, उस बेसिस पे आप क्या करोगे, फिर से न्यू प्लान कमिट करोगे। यानी प्लान भी एक बैकवर्ड लुकिंग है क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट कंट्रोलिंग प्रोसेस से जो रिजल्ट आते हैं उसके बेसिस पे फ्यूचर प्लान किया जाता है। कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। व्हाई? द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल नेसेसरली इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन विच एम्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल। दस इट इज़ रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ये तो मैंने पहले भी बताया कि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि कंट्रोलिंग से जो भी रिजल्ट आते हैं वो फ्यूचर में होने वाले प्लान्स के लिए हेल्पफुल होता है। सो अगर हम बात करें इस डायग्राम से, आप देखिए देख रहे हैं ये चलता जा रहा है। हमने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ किया, डायरेक्टिंग किया, फिर कंट्रोलिंग किया, फिर कंट्रोलिंग के बाद फिर न्यू प्लान बनाया। यानी जो उस कंट्रोलिंग से रिजल्ट आया उस रिजल्ट की हेल्प से आप देख रहे हो हमने फिर से न्यू प्लान कनेक्ट किया, फिर यहाँ हमने ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, कंट्रोल। यानी अगर आप देखो यहाँ प्लान जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, यहाँ जो प्लान है वो बैकवर्ड लुकिंग है क्योंकि वो प्रीवियसली जो कंट्रोल है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ जो कंट्रोल है वो फॉरवर्ड लुकिंग है और यहाँ जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं इस प्लान पे डिसाइड है, सो ये बैकवर्ड लुकिंग है। सो कंट्रोलिंग हो चाहे प्लानिंग हो, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेट करता है एंड दे आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज द बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। यू नो आपने प्लानिंग चैप्टर पढ़ा है, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है, स्टाफिंग पढ़ा है और डायरेक्टिंग पढ़ा है।
तो इन सब का अपना एक प्रोसेस होता है। जैसे प्लानिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में होते हैं, स्टाफिंग में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, उनका अपना अपना प्रोसेस है। उस तरह से डायरेक्टिंग में भी हम लोग कई सारे एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, तो उनका भी एक प्रोसेस है। उसी तरह से जो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है उसका भी एक प्रोसेस है, यानी कुछ स्टेप्स हैं उसके जिसको हम कंडक्ट करते हैं और कंट्रोलिंग को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। There are basically 5 steps in the process of controlling. Number 1, setting performance standard. Number 2, measurement of actual performance. Number 3, comparing actual performance with the standard. Number 4, analyzing deviation. And number 5, taking corrective action. अगर आपको पूरे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग को समझना है तो सबसे पहले आपको कंट्रोलिंग की डेफिनेशन को प्रॉपरली, मीनिंग को प्रॉपरली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग की बेसिक मीनिंग गिवन है। सो कंट्रोलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, यानी इसमें हम परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। यानी सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कंट्रोलिंग के लिए, द फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड द स्टैंडर्ड। नंबर सेकेंड, हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस करते हैं, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। देयर आफ्टर मेजरिंग डेविएशन, फिर हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन कैसे होता है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो स्टैंडर्ड कैलकुलेट होता, डेविएशन कैलकुलेट होता है। एंड देयर आफ्टर हम टेकिंग करेक्टिव एक्शंस को फॉलो अप करते हैं। सो द कंट्रोलिंग के पूरे प्रोसेस को स्टडी करने के लिए आपको ये डेफिनेशन, ये मीनिंग याद होनी चाहिए कि कंट्रोलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस according to standard, measuring deviation and taking corrective action to achieve predetermined goal. So यहाँ पे आप देखो कि process of controlling में they are basically 5 steps. The first step, setting performance standard, यानी हम सबसे पहले स्टैंडर्ड को परफॉर्मेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको डिसाइड करते हैं। नंबर सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी हम उसके बाद जो एक्चुअल एक्टिविटी होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, उसको मेज़र करते हैं। नंबर 3, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, यानी फिर हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं कि हमने सोचा क्या था, हमने ऑब्जेक्टिव क्या रखा था और एक्चुअल में हम लोगों ने क्या काम किया। नंबर 4, डेविएशन जो आता है विद द हेल्प ऑफ स्टेप नंबर 3, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, उस डेविएशंस को एनालिसिस करते हैं कि कुछ डेविएशन होते हैं एक्सेप्टेबल होते हैं, कुछ डेविएशन एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। सो हम लोग डेविएशन को एनालिसिस करते हैं एंड देयर आफ्टर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्यूचर के लिए करेक्टिव एक्शंस को फॉलो करते हैं। सो हम लोग प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के कुछ स्टेप्स आज के वीडियो में और कुछ स्टेप्स जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. Standard are the criteria against which actual performance could be measured. These serve as benchmark towards which an organization strives to work. The first step of control process is to establish standards against which actual results are to be evaluated. Standards are set in quantitative as well as qualitative terms, but managers should try to set standards in quantitative terms which can be easily measured and compared later on. If standards are set in qualitative terms, and efforts must be made to define them clearly for easy measurement. Due to changes taking place in internal and external environment, standard need to be revised regularly. देखिए ये जो पूरा पहला स्टेप्स दिया है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, कि हमें सबसे पहले परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को डिसाइड करना चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड होता क्या है? स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया है जिसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं और ये हमको एक बेंचमार्क प्रेजेंट करता है, एक बेस प्रेजेंट करता है जिसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। अगर हम स्टैंडर्ड को फर्स्ट स्टेप मानते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस का, तो ये वो इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने एक्चुअल रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं। जैसे अगर हमने पर डे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, तो हम ये कैसे तय करेंगे कि हमने जो प्रोड्यूस किया है वो सफिशेंट है कि कम है? हम उसका मेज़रमेंट, इवेल्युएशन उस बेसिस पे करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड क्या था। अगर हमारा स्टैंडर्ड 100 यूनिट्स पर डे का चल रहा है, सो हम लोग
अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। बट अगर हम पर डे 150 यूनिट्स का टारगेट लेके चल रहे हैं और उसके बावजूद अगर हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका मतलब अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली स्टैंडर्ड हमको ये बताता है कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट सही डायरेक्शन में है कि नहीं, हम उससे कितना पीछे हैं। अब रही बात स्टैंडर्ड्स की, तो स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव भी होते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। जैसे हम पहले कुछ आपको क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स की बात कराते हैं। द क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज़ मोरल, मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज़, ये है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम पर डे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम अपनी सेल्स को 10% से इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको हम मेजर्ड एक्चुअल वे में नहीं कर सकते, लेकिन क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं एक्चुअल वे में मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि इस साल मुझे अपनी सेल्स को 10% से इंक्रीज़ करना है, सो ये मेरे स्टैंडर्ड हैं कि मेरी अगर प्रीवियस ईयर सेल 5 लाख है तो करंट ईयर हमें कितनी सेल होनी चाहिए? 5,50,000 होनी चाहिए। यानी हम इसको देखें, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को देखें तो हम ईजिली अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं और उसको डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हम अपना स्टैंडर्ड ये रखें कि हमें एम्प्लॉयज़ में जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है, उनका मोरल हाई करना है, तो कहीं ना कहीं हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र नहीं कर पाते। सो बेसिकली कोशिश ये करनी चाहिए कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड जो होते हैं वो तो ईज़िली कंपेरेबल होते हैं, उससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं। बट जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड होते हैं उनको एकदम प्रॉपर क्लियर रखना चाहिए कि कब किस सिचुएशन में हम ये मानेंगे कि जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हुआ है, मोरल इंक्रीज़ हुआ है। यानी उसके लिए स्टैंडर्ड्स के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करने के लिए भी प्रॉपर गाइडलाइन भी होनी चाहिए। सो द स्टैंडर्ड जो हो सकते हैं क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, बट ईजिली कहाँ हमको पड़ता है? ईजी हमें पड़ता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स में। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स में एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट थोड़ा सा टफ टास्क होता है। रही बात चेंजेस की, तो अगर हम आपको बताएं कि यू नो वेरी वेल चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, सो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर अनसर्टेनिटी, आपको अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करते रहना चाहिए। अगर हमारे कंपनी में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ कर जाते हैं या कोई भी फेवरेबल चेंजेस आता है तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना चाहिए। और अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तो हमें स्टैंडर्ड्स को उसी अकॉर्डिंग कम करना चाहिए। जैसे इस समय हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस प्रॉब्लम के केसेस में कई कंपनीज़ ने अपने स्टैंडर्ड्स को कम किया होगा। स्टैंडर्ड्स का मतलब ऑब्जेक्टिव को। अगर वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है तो यू नो वेरी वेल कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि कुछ दिनों तक तो पहले बिज़नेस बंद हो गए। अगर ये लॉकडाउन फिर खुलता है इन फ्यूचर बाय द वे, सो इस सिचुएशन में आपको पता है कि लेबर्स की कमी होगी। कुछ कंपनीज़ ऐसी होंगी जहाँ पर हम लोग ये भी देखने को मिलेगा कि वहाँ लेबर ही नहीं मिलेंगे, प्लस एज वेल एज़ वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा कि आप 100% एम्प्लॉयज़ के साथ काम नहीं कर सकते, 50% 30% एम्प्लॉयज़ के साथ ही काम कर सकते हैं। सो इस सिचुएशन में आपके पास मैन पावर कम होगा, तो आपको अपना स्टैंडर्ड भी उसके अकॉर्डिंग रिवाइज कर देना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग द फर्स्ट स्टेप पूरा क्लियर हो गया कि स्टेप्स में स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? एक पैरामीटर, एक क्राइटेरिया जिसके थ्रू अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। नंबर सेकंड, स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव भी होता है एज वेल एज क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड से हम ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, बट क्वालिटेटिव मेजर्ड से या स्टैंडर्ड से हम कंपेरेबिलिटी थोड़ा टफ टास्क होता है, इसलिए हमें क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली क्लियर रखना चाहिए। ओके, जैसे एम्प्लॉयज़ मोरल, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन अगर हमें मेज़र करना है एम्प्लॉयज़ के बीच में तो इसे प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन कि अनसर्टेनिटी के फेस में आपको अपने स्टैंडर्ड्स को अकॉर्डिंग रिवाइज करते रहना चाहिए। इफ़ देयर आर एनी देयर इज़ अ नेगेटिव और एडवर्स इफेक्ट इन द इकनॉमी, सो इन दिस सिचुएशन स्टैंडर्ड्स को कम करना चाहिए। और अगर कोई पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हैं तो सिचुएशन में हमें अपने स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज़ भी करना चाहिए। सो बेसिकली आज हम लोगों ने इस क्लास में
कंट्रोलिंग का फर्स्ट स्टेप क्लियर किया कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मीन्स द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड. अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र नहीं कर सकेंगे. बेसिकली इसमें 5 स्टेप्स हैं, बट आज हम लोगों ने सिर्फ एक स्टेप डिस्कस किया है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. इन द नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पाँचों स्टेप्स को डिटेल वे में एक्सप्लेन किया जाएगा. और इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कई टॉपिक्स को स्टडी किया, जैसे हम लोगों ने प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, एज वेल एज कंट्रोलिंग की लिमिटेशन को भी ईजिली स्टडी किया. बट इफ़ यू हैव any kind of doubt regarding this video, so please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.